Welcome to Gearhead Official, and today we have a very special motorcycle with us, the Ducati Street Fighter V2. Now this is the naked sibling of the Panigale V2 and a lower variant of the Street Fighter V4. What all changes the Ducati Street Fighter V2 has in comparison with the V4? Today we are going to find out with me, Chayan Sharma, and you are watching the Gearhead Official. So first of all, we are going to talk about the design of this motorcycle, which is originally driven from the V4. और इसके अंदर initially देखते ही आपको एक change महसूस होगा जो कि V4 के अंदर है, वो है इसके winglets. इसके अंदर कोई भी winglets नहीं दिए गए जो कि V4 के अंदर दिए जाते हैं. और side panel जो है, ये जो सिल्वर पैनल आप यहाँ से देख रहे हैं, ये कम्प्लीटली नीचे तक होता है V4 के अंदर. यहाँ पे इसको कलर्ड उसमें दिया गया है, तो थोड़ी सी लुक वाइज डिफरेंट हो रही है ये V4 के कंपैरिजन में. कलर और डुकाटी इज़ टू ब्यूटीफुल. लाइक इस मोटरसाइकिल से किसी भी बाइकिंग एंथुसियास्ट की नज़र कभी हट ही नहीं सकती. दिस इज सच काइंड ऑफ मोटरसाइकिल. लुक एट द फ्रंट डिज़ाइन ऑफ द बाइक, यू विल नोटिस कि एरोडायनामिक काफ़ी ज़्यादा ये डिज़ाइन बनाया गया है. एंड देयर इज़ नो स्पेस for the visor as well, because just look at the placement of the speedometer, the Ducati badging over here. So visor का यहाँ पे लगना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, एक टास्क हो जाता है. Other than that, 130 to 140 kmph this bike can easily do without a much wind blast on your face, because ये इतनी ज़्यादा डायनामिक एरोडायनामिक मोटरसाइकिल बनाई गई है फ्रंट से. Now talking about the engine, 955cc V twin इंजन इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है, जो कि प्रोड्यूस करता है 153 PS ऑफ पावर एंड 101 Nm ऑफ टॉर्क. सो इंजन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि हर गियर में यू कैन पॉप अ व्हीली. Now talking about the suspension of the motorcycle, we have the fully adjustable front Showa suspension and the rear sash fully adjustable monoshock. In terms of the braking, you get 320 mm dual disc and a 245 mm rear disc. Now the calipers are from the house of Brembo. You get the front Brembo monoblock M4 calipers and the rear 2 piston calipers. Now in terms of the tires, you get the Pirelli Doblo 4 tires equipped in it, and this whole setup is supported by the Bosch dual channel cornering ABS Evo. The one thing we love about the Ducati motorcycles, the single side swing arm. Now the all open wheel here looks so beautiful here. Now this small size exhaust also goes with the overall geometry of the motorcycle and gives it a really complete look. So first of all, let me tell you, this motorcycle weighs just 180 kgs dry. And what is the reason behind it? The light-weighted chassis. We all know that Ducati is famous for that. Then we also have the 5-spoked alloy wheels, which are really light in weight. Then because this is a naked motorcycle, so obviously there is no framing and there are a lot of weight has been reduced because of that. बट अगर आप ओवरऑल बाइक को देखोगे, सो 180 kgs यार, किसी भी इंडियन मोटरसाइकिल की अगर हम बात करते हैं, स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल में बात करते हैं, सो आई गेस डोमिनार भी जो है ना, वो 190-200 के अराउंड वेट करती है. बट जस्ट लुक एट दिस, 1000 cc का इंजन होने के बाद भी इट इज़ जस्ट 180 kgs ड्राई. From the weight, coming to the seat height, 845 mm is the seat height, and yes, it is a tall motorcycle. I am 5'9", so you can see the stance. But the best part of this motorcycle is, just look at the way I am sitting on it. It's not aggressive. It is really good motorcycle for the city. And just look at the space in the seat. आपको कितना ज़्यादा spacious ये motorcycle मिलती है. Just in case you want to duck in, just look कि कितना ज़्यादा आपके पास space है, and you can just go into this kind of posture. But for your daily riding, it is so much comfortable, no aggressive stance, upright posture, a complete motorcycle for the city as well. So I'm going to give you the features which is there in the Ducati Street Fighter V4. It's really, the seat height is really high. So now we are going to talk about the features which is there in the Ducati Street Fighter V2. So let's check this out. So this is the speedometer of the Ducati Street Fighter V2. Let me turn this on and just look at it. Full digital display. Just like this, so good. So from here we can toggle the speedometer. You can see enter mode, and this is the toggle switch. So first of all,
क्लिक इन ऑन द मोड, सो यू विल गेट द राइडिंग मोड। राइडिंग मोड के अंदर अगर हम क्लिक करें, सो यू गेट 3 मोड्स, स्पोर्ट्स, रोड एंड वेट। जस्ट क्लिक ऑन द स्पोर्ट्स मोड एंड यू कैन सी इंजन यहाँ पे आपको मिल जाता है, हाई पावर, लो पावर, पावर रिड्यूस, डायनामिक। इसको आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ABS लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरीके से आप कर सकते हैं, जिसमें आपका रोड परफॉर्मेंस, ट्रैक, इस तरीके से आपके लेवल 3 तक चेंजेस हैं। गोइंग बैक, ट्रैक्शन कंट्रोल, डुकाटी ट्रैक्शन कंट्रोल लेवल 8 लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल इसके अंदर दिया गया है, माय गॉड। एंड यू कैन सी ट्रैक ओरिएंटेड और वेट कंडीशन के हिसाब से अपने तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि आपको कैसा चाहिए। सो लेट मी जस्ट गो बैक। व्हीली कंट्रोल, क्लिक ऑन दिस, 4 लेवल व्हीली कंट्रोल, सेफ, स्टेबिलिटी एंड देन लेफ्ट साइड में है परफॉर्मेंस। तो अगर आप एकदम ऑफ कर देते हैं, सो दैट गोज़ इनटू टोटली परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल, व्हीली कंट्रोल आपका ऑफ हो जाएगा। बैक, नाउ दिस इज इंजन ब्रेकिंग कंट्रोल, क्लिक ऑन दिस, मैक्स ब्रेकिंग लेवल 2, लेवल 3, मिनिमम ब्रेकिंग लेवल 3 पे है, लेवल 1 में मैक्सिमम इंजन ब्रेकिंग आपको मिल जाती है। गो बैक, डुकाटी क्विक शिफ्टर, नाउ क्लिक ऑन दिस and you can turn on and off the quick shifter and the quick shifter works both ways, up and down. So इतना सारे फीचर्स भाई डुकाटी ही दे सकता है। देन वी गो बैक टू द राइडिंग मोड। ये आप हर एक मोड को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। वेट, रोड आपको जैसा अपने कंडीशन के हिसाब से मैनुअली सेट करके रखना, अदरवाइज़ बाय जो डिफ़ॉल्ट आता है वो सेट करना है। यू कैन सिलेक्ट ऑल डिफ़ॉल्ट, तो जो कंपनी की तरफ से डिफ़ॉल्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। देन इफ़ वी गो बैक, सो यहाँ पे पिन कोड, इवन लेट सिलेक्ट, यहाँ पे आप पिन डाल सकते हैं। DRL ऑटो और मैनुअली ऑन करने का ऑप्शन यहाँ पर है। बैकलाइट, नेटिव डिस्प्ले और जो अभी डिस्प्ले आ रहा है, ये 2 डिस्प्लेस इसके अंदर अवेलेबल हैं। डेट एंड टाइम, यू कैन सिलेक्ट द डेट एंड टाइम। गोइंग बैक, सर्विस, यहाँ पे सर्विस इंटरवल का आपको ऑप्शन दिखा देगा। ऑयल सर्विस, डेस्मो सर्विस, एनुअल सर्विस, 3 तरीके से इस पर सर्विस का दिखा रहा है। यहाँ से आप बैक चले जाइए। यहाँ पे लैप टाइमर आप ऑन कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे लैप डाटा इज ऑल, दिस इज़ दी ऑल इन्फॉर्मेशन यू गेट। टायर कोलैबोरेशन, जिसके अंदर आप स्टार्ट कर देंगे इसको, सो ये इलेक्ट्रॉनिकली आपको जब आप स्पीड में चलाएंगे, सो इलेक्ट्रॉनिकली टायर को एडजस्ट करता है ये। देन वी हैव द टर्न इंडिकेटर ऑप्शन। इसके अंदर अगर हम क्लिक करेंगे तो ऑटो टर्न इंडिकेटर्स ऑफ और ऑन का आपके पास ऑप्शन है। जस्ट इन केस अगर आप ऐसे ऐसे सीधा करते हो तो वो ऑटो ऑफ हो जाएंगे इंडिकेटर। दूसरा है आपका मैनुअली, सो डिपेंड्स कि आप क्या ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हो। यूनिट्स के अंदर आपका स्पीड, टेम्परेचर और कंजम्पशन, आप इसके यूनिट्स चेंज कर सकते हो, जैसे सेल्सियस का फ़ारेनहाइट कर सकते हो, kmph का माइल्स पर आवर कर सकते हो। सो इस तरीके से यू कैन चेंज द यूनिट्स एज वेल। इन्फॉर्मेशन के अंदर अगर हम देखें तो बैटरी की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, 11.7 वोल्टेज अभी दिखा रहा है ये बैटरी की। देन एग्जिट। सो दीज आर ऑल फीचर्स लोडेड ऑन दिस डुकाटी। नाउ ऑल्सो यू कैन सी यहाँ पे रोड मोड आपका लिखा आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट जो स्क्रीन के अंदर आपकी डिस्प्ले होती है, यहाँ पे एयर आपको दिखा रहा है, 34 जो प्रेशर है, टायर प्रेशर है एयर का। साइड स्टैंड अभी लगा हुआ है, स्पीड है, यहाँ पे RPM मीटर है। नाउ जस्ट चेक दिस आउट। इंजन ब्रेकिंग कंट्रोल यहाँ पे आपको दे रखा है, उसके नीचे DTC ट्रैक्शन कंट्रोल कौन से लेवल पे है वो भी दिखा रहा है, ABS कौन से लेवल पे है वो भी दिखा रहा है, डुकाटी व्हीली कंट्रोल कौन से लेवल पे है। ये सारे यहाँ पे जिस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, आई गेस कोई भी ऐसी बाइक नहीं है जो इतना डिटेल में आपको इतनी सारी फीचर्स को एक साथ डिस्प्ले में देता है। इनफैक्ट इतना कॉम्पैक्ट होने के बाद भी इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिलती है। सो दिस इज़ द होल स्पीडोमीटर डैश। नाउ व्हाट इज़ दिस? नाउ ये इसलिए काम करते हैं जब आप हाई स्पीड पे हो तो आपके सामने कोई भी पॉट होल आ जाता है या फिर आपकी बाइक फ्रंट से कंट्रोल लूज़ करने शुरू हो जाती है, शेक होने लग जाता है हैंडल। सो ये डैम्पिंग के लिए यूज़ होता है। सो ये एकदम से स्टिफ करता है, आपकी बाइक को कंट्रोल देता है। सो एक्सीडेंट बहुत ईजिली अवॉइड हो सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल थिंग जो कि आप और नेकेड बाइक्स के अंदर अगर आप चेक करेंगे जो भी 1000 cc के अंदर आती है, सो बहुत रेयर है कि नेकेड मोटरसाइकिल के अंदर ये ज़्यादातर देखने को मिला है, क्योंकि ये फ्रेम मोटरसाइकिल में ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड ये इस मोटरसाइकिल के अंदर क्यों है? बिकॉज दिस इज़ मोर ट्रैक ओरिएंटेड मोटरसाइकिल।
From the speedometer coming to the tank, 17-liter fuel tank, and don't ask me what is the mileage of this because Ducati है ये. So ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा irrelevant होगा इस वीडियो के अंदर अगर मैं इसकी माइलेज बता भी दूँ तो. Now with this, let's listen out the exhaust note. ये करने के लिए तो मैं कब से बेताब हूँ. V2, totally different from the inline engine, and you can just check out the grunt it has, not the smoothness like the V4, not the smoothness like the inline force, but this has a grunt. Oh, too loud. So now we talk about the price of this motorcycle. This will cost you 18.1 lakh ex showroom. Ducati है, expensive है, but this is a totally different machine when you compare it with the liter class motorcycles. Although yes, we have the options available, लेकिन then जो features इसके अंदर motorcycle के अंदर दिए गए हैं, you will not find it in the regular Street Fighters motorcycle. So this is it from my end. If you like the video, do not forget to like, subscribe and share our channel. We'll meet you with our next motorcycle. Till then, stay tuned.